A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are creating a program of swap two numbers. Okay. So in today's video, we are seeing how we can swap two numbers with the help of three variables. Okay. So what we have to do here, suppose I have a variable, suppose A. Okay, and in that A I have value 50. Okay, and here is another variable in which I have the variable value is 100. Okay, so what we have to do in the output, I want the output as A is assigned the value 100 and B has assigning the value 50. Okay, this type of program we have to done in that video. So let's start. So first of all, what we have to do, we have to include a header file. So for that I have to write as include stdio.h. okay, and the another header file I have to write is as include ponyo.h, and we know that stdio.h stands for standard input output header files. So the printf, scanf functions which are predefined are stored in that stdio.h file, and the console input output.h, in that header file we have the functions like a clear screen and getch functions. Okay, so after that what we have to do, we have to create in main function. Okay, in that main function we need three variables. Okay, so first of all I need integer a, comma b and temp. I have created three variables for that program. Now in this video we have take the input from the user. So we know that if we want to take input from the user, we have to write two functions that are printf and scanf. Okay, so printf is used to print that is to written in on console screen. Okay, so here if I have to write enter the first number. Okay, तो ये हमारे पास as it is लिखा हुआ आएगा कंसोल स्क्रीन पे. Now scanf, in that I have to write first of all, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे परसेंटेज डी, और हमें पता है कि इसमें आएगा डबल कोट्स में आएगा. हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी. परसेंटेज डी क्यों लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल ए है वो कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हमें वहाँ पे ए लिखना पड़ेगा. फर्स्ट नंबर ए लिख लेते हैं जैसे. ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे एम्परसेंट ऑफ ए. ओके, इसी तरह हम बी के लिए भी बनाएंगे क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए. प्रिंटफ, इसके अंदर हम लिखेंगे वापस एंटर द सेकंड नंबर. ओके, बी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब भी कोई भी फंक्शन क्लोज करेंगे उसके बाद सेमीकोलन लगाना कभी ना भूलें. ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्कैन एफ, यहाँ पे हम ये भी कैसा है इंटीजर टाइप का है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा आपके परसेंटेज डी आ जाएगा, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे एम्परसेंट बी. ओके, चलिए यहाँ आपको लॉजिक का अंतर लिखना पड़ेगा. temp assigning a, what it means we have to assign the value of a in the variable temp. Okay, after that I have to write b is equals to a is equals to b. What it means, it means the value of b is now assigning to variable a, and after that I have write b is equals to temp. Okay, ये बस इतना सा आपका 3 लाइन का सिर्फ लॉजिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डिफिकल्ट है. ठीक है ना, तो अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हमने क्या करा, temp इक्वल्स टू ए कर दिया, temp assign a कर दिया. इसका मतलब अब समझिए हमारे पास a के अंदर वैल्यू थी 50. ठीक है ना, तो वो temp के अंदर वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो गई है, 50 हो गई है. ठीक है ना, देन a इज इक्वल्स टू b. इसका मतलब क्या, जो b की वैल्यू वो a में असाइन कर देनी है. तो अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई है
ए की वैल्यू आपके पास हो गई है 100, क्योंकि बी की क्या थी 100 थी ना, ठीक है। चलिए सबसे आखिर में अब हमारे पास क्या है, b इक्वल्स टू टेम्प, इसका मतलब b की वैल्यू, अब टेम्प की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 50 आई थी, तो 50 b को असाइन हो गई। इस तरह आप देख सकते हैं a की वैल्यू अब 100 हो गई, b की वैल्यू 50 हो गई, जो पहले क्या थी a की वैल्यू 50 थी और b की वैल्यू क्या थी आपके पास 100 थी, ठीक है ना। चलिए तो अपन इसको वापस डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये सब समझने के लिए ये पीछे जो रैम के अंदर कंपाइलर ने यही काम किया है जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखा है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गए, अब इनको क्या करना है, इनको प्रिंट करके शो भी तो करवाना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख देता हूं आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज, और मैं लिख देता हूं %d, और अब सिर्फ आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आपको सिर्फ ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह जिससे दिखता रहे अपन को, ठीक है ना। ये हो गया आपका। ऐसे कैसे हम क्या करना पड़ेगा, बी के लिए भी करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करूँ, आप ऐसा ना करें, आप पूरे अच्छे से कोडिंग करें जिससे आपकी हेल्प रहेगी कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बी लिख देंगे, स्वैपिंग वैल्यू ऑफ बी, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे रिटर्न 0 एंड गेट ch फंक्शन विच इज यूज्ड टू होल्ड द कंसोल स्क्रीन, ओके। चलिए अब हम चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। चलिए हम बिल्ड एंड रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास आया एंटर द फर्स्ट नंबर ऑफ ए, तो इसके अंदर अगर मैं एंटर करता हूँ, ए की वैल्यू हमने क्या करी थी एंटर 50, बी के अंदर हम 100 एंटर कर दे, ओके। अब देखिए आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज 100, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ बी इज 50, ओके। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो एकदम सही है, ठीक है। बहुत इजी प्रोग्राम है, इसको आप ट्राई करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।